interview. Students, we all are here to learn something different in interviews, right? Always I am providing my lectures or interviews. Every lecture is quite different from the previous one. Today I am going to teach you something very interesting, and before that, I want one thing from all of you. Although we are taking your name, your qualifications, that's another matter. But today I want something different from all of you. I want from you that in actually, really, for what job you want to give your interview. You just have to specify that, sir, I feel as if that in my future case, I'm going to face an interview of this, that, like this, right? So, first of all, I would like to ask from ladies section. Yes, please. For what you want to give interview in your life? For which job? Sir, because I want to be an ideal PDCA. Okay, means you want to be a good teacher, and for this you want to give an interview. Madam, please. What you want to be? Good morning, I am Bimla Treza. For what, madam? For what you want to give your interview? किस चीज का इंटरव्यू देना चाहते हैं आप लाइफ में? Sir, education. Okay, already you are a lecturer in colleges, so yes, certainly you have to give lecture in college. Madam, please. For what you have to deliver interview in the near session? I want to be a successful teacher. Very good. Again, so many teachers are rendering their services. Next, please. I want to be a teacher. Very good. So I have 4 teachers, so I'll prepare my interview session as if that it will be helpful for teaching sessions. Yes, Riya, for what you are here? For what interview? For technique. Very good. You will preparing for bank. Okay. Next, please. I want to be a successful businessman. Next, please. I want to be a successful CA or Okay. For CA, you want to go for jobs and various other things. Yes, please. I want to be a successful scientist. Okay. Next, please. For what interview you want to give? I think SSB. I want to be create an army officer. Army officer. That's very nice. Next, please. I want to be a bank officer. Bank officer. Next, please. I'm Natik Nasba. I want to be a doctor. Okay. Next, please. For what? I want to be a businessman. Next, please. I want to be an army officer. Army officer. Definitely, you are supposed to give an interview of SSB only. Next, please. I want to be a bank officer. Bank officer, and that is especially a post of SO. Yes, sir. Okay, specialist officer. So, students, this session we start with a very simple term that we already, I believe, all of us know. That is your intro, right? Yes, sir. Whenever we asked any person his or her interview, people specify and tells more about their family rather than about themselves. You can go and ask your friend, any of your friend even, and tell him, please tell about yourself. For 20 seconds, 30 seconds, he will tell about himself. But after few seconds, you will come to know that he is telling more about his family. Very soon we come on our parents, on our brother, on our sister. Is it happening? Yes, sir. Yes, because we don't have point for ourselves more. But in an interview, we should tell more about ourselves or about our parents. About ourselves, definitely. So students, whenever we are giving an intro, we know very well that we are telling our name first of all. Agree? हम किसी भी इंट्रोडक्शन को नाम से शुरुआत किए बिना नहीं दे सकते, right? Until unless वो आपसे डायरेक्ट नाम पूछ ले, अभी अपने बारे में बताइए. That time he can say, sir, I am studying in this, because he knows your name already. But sometimes he is asking you tell about yourself. In that case, you are supposed to tell your name also, right, students? Coming on the name, we have 3 options. You can say, sir, my name is this. See, students, we can say, my name is this. This is a very simple term. And your second point is, you can say myself. Even you can state myself. And then your name. Like you can say, my name is Subhash. You can say myself Subhash. Or you have third option, that is, okay, you are studying it, I am. I will not say you to repeat it is I am. You will say am from today onwards. आप सब मैंगो खाते होंगे? Yes, sir. तो मैंगो को बोलने का जो वे है वो हिंदी में क्या है? आम. So वो आम हम बोलेंगे हमेशा. We'll say what? Am. Then we can state our name, whatever name we have. Right, students? So I believe this is quite kid-like. थोड़ा सा बच्चों का सा लगता है. LKG दौरान तो चल जाता. अब हम well mature personality तो हमारी personality को सूट नहीं करता. हमारा सेकंड जो पॉइंट है myself, ये थोड़ा सा ईगो शो करता है. अहम, अक्खड़पन, घमंड. It shows ego. इसके अलावा आप सेल्फ का मीनिंग जब ढूंढेंगे, you will come to know it also means arrogance. Arrogant personalities आपको पता होगा क्या होता है, right? So थोड़ा सा ये हमारे इंट्रोडक्शन को as if that we are an attitude person. So it doesn't correlate our personality.
Your second more important is whenever you are saying myself, it's a reflexive pronoun. क्या है स्टूडेंट्स ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक गोल्डन रूल होता है जो भी कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं दे मस्ट बी नोइंग दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी यूज्ड इन सब्जेक्ट फॉर्म. तो जब हम माई सेल्फ उसके बाद हमारा नेम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ रितु, माई सेल्फ रिया, अगर हम कुछ भी अपने बारे में बोलते हैं तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, ग्रामेटिकली वी आर रॉन्ग. ग्रामेटिकली हम क्या बन जाते हैं, रॉन्ग बन जाते हैं. ग्रामेटिकली हम अपनी बात को सही सजेस्ट नहीं करते. तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वी हैव लास्ट ऑप्शन दैट इज आर्म. यू विल से आर्म, राइट. कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट सेशन, जब हमने नेम बताया तो डेफिनेटली हमारी एजुकेशन मैटर करती है और यहां पर तो बहुत से टीचर्स भी हैं. तो सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस की जगह एजुकेशन रखूंगा और एजुकेशन के अंदर आपने कुछ भी किया हो, वट एवर यू डन, यू शुड स्टेट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, इन बेस्ट मैनर, बेस्ट पॉसिबल मैनर. इवन आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इवन आपको 8 इयर्स है, दैट डजंट मैटर. You have to specify your experience in different manner. You should use one word here that is salubrious. Look up here. You use this word salubrious. Please jot down right fast, all of you. Salubrious. I should say it is an icing on the cake on your personality if you say that salubrious experience. So whether you have an experience of 2 years, whether you have an experience of 12 years, doesn't matter. The thing which matters is you should use this word that is salubrious. It means what? अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसका मीनिंग क्या है. तो स्टूडेंट्स कम अप, इट मींस हेल्दी. व्हाट इट मींस, healthy. So you will use the word, sir, I have a salubrious experience of teaching profession, or whatever you want to say, you can highlight, or whatever jobs. Since there are not many teachers sitting, so I'll talk about teachers also. Coming on the next aspect, students, whenever giving our introduction, we should tell our hobbies also. If you have an experience, then okay, you should say, but many people are freshers here, so we'll tell our name, then our education, and then our hobbies. But if you are experienced, you should show your experience also, whatever experience you are saying, and you should use this word that I have a salubrious experience. Whatever education you have, if it is more than 60%, highlight that, sir, I scored this many percentage. But if it is less than 65%, don't use it all. बिल्कुल भी ना बोले और सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम लेकर चुप हो जाए. Doesn't matter, मार्क्स से कभी कोई इंटेलिजेंट नहीं बना आज तक, तो मार्क्स doesn't matter more in your personality. Coming on the next thing, that is your hobbies. In hobbies, I would like to tell you a short story. You must have heard the stories of tortoise and rabbit. आपने सुनी होगी. What was the moral of the story? Do anybody know? Very good. Even my kids stuff know very well. That slow and steady wins the race. Students, that story was quite interesting, but that story was not a limit. Story was further also. Story उसके बाद भी थी. And what was that story? Story ये थी कि ये जो हमारा रैबिट था, ये कहता मैं तो सो गया था, मुझे तो नींद आ गई थी, तो डेफिनेटली तुम्हें जीतना ही था. तो हमारा जो टोर्टोइस था, ये कहता ओके, डजंट मैटर, तो तुम क्या चाहते हो? वो कहता मैं दोबारा रेस करना चाहता हूं. कहते ओके, करिए रेस. एंड दे स्टार्टेड देयर रेस अगेन. एंड दिस टाइम डू यू नो व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स? दिस टाइम tortoise only said one thing. Tortoise said, we will make a race, but we will make a race in south direction, north direction. Choice was of tortoise only. So tortoise made his choice and he told, south की तरफ ही हम दौड़ेंगे. Rabbit कहता doesn't matter, I am ready for everything, और मैं हर चीज के लिए तैयार हूं. And they started their race. क्योंकि rabbit को मालूम था आपकी बार मैं सोऊंगा नहीं, मगर rabbit ये बोल गया था कि tortoise एक intelligent person है, witful animal है. And they started their race. In the mid, what happened? Do you know, students? River came. बीच में नदी आ गई. And this thing only tortoise know. Rabbit was unaware. Rabbit को नहीं पता था कि इस रास्ते में river है, मगर tortoise को पता था और tortoise ने choose वो किया. And when they come near the bank of the river, tortoise swam beautifully and rabbit stayed there. And again tortoise won the race. What was the moral of the story? The moral of the story was, we all are having guts, we all have urge to be successful, and we even don't know that where we are going to be. But the thing is, if you make your own rules and work upon it, you will definitely get success. So from today onwards, instead of working on others making rules, you make your own rules and follow it, and you will definitely get success. So the thing which come over here is, whenever you are giving your hobbies, it depends where you are going. Many of my candidates are going for SSB interview, for lieutenant interview, and in that, if they state, sir, music, dancing, playing and walking and this thing are my hobbies only, it doesn't suit. क्योंकि music
dancing are part and parcel of life. But if such are your hobbies, your personality would be like this only. But if you tell you are going for an SSB interview and if you state, sir, certain games are my hobbies, it would definitely be beneficial for your further interview selection. And the second important is, if you are a diligent personality, reading is very impressive. Even for my lady stuff, I'll say, because many of you want to be a teacher, so reading if you place, it gives a good impression in the eyes of an interviewer. But many students fear, बहुत से students डरते हैं. They say, sir, whenever we are giving reading as a hobby, many people ask so many things. So I always tell them that why you fear? If you won't say this, he will ask you something different, which you may not know. So you should prepare for that. So in that I would consider here that we are in our PD classes, we are teaching so many things related to reading and such best stuff that interviewers will definitely get impressed that in such a young age, this person has learned so many things. As you know, students, while preparing my this interview preparation seminar, I thought of one particular point. That was that we should be very, very diplomatic in telling our hobbies. You take an example of a marketer. He is going for a job of marketing. Example, medical representative's job, sales representative's job. Many students are going in this. And during their job, if they state, sir, my hobbies are traveling, making friends, meeting new personalities. For which job I am stating? For marketing job. This will be again an icing on the cake. He will definitely get selected because he is saying his jobs which are correlating, right? Many of my students, one of our students, she is preparing here for air hostess. So I suggested her that you should display your hobby as if that traveling is my hobby, meeting new personalities is my hobby. This would definitely impress the interviewer. And she said, yes sir, I agree with you. I'll put her interview in the further part of my lecture only and you can enjoy that interview session. Coming on our next thing, that is your hobbies. When you are going for a teaching job, your hobby must be reading and teaching. If you play such hobbies, it would be very nice. No doubt, singing also good, dancing also good, you can add on. But reading should be placed during your hobbies. Coming on the next thing, that is your aim. Whatever aim, as many of my lady staff has stated here, sir, I want to be a successful pedagogue. So it's good. If you want to go for pedagogue, you should. अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो आप जरूर हाईलाइट करो. Last point आप जो हमेशा बताएं, that should be your strengths. आप स्ट्रेंथ्स जरूर बताएं. स्टूडेंट, एक टॉपिक होता है SWOT एनालिसिस. एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारी पर्सनालिटी का. जब हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक सेशन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट इज योर SWOT एनालिसिस. तो इन दिस SWOT एनालिसिस वी लर्न सो मेनी थिंग्स. S stands for strengths. S हमें क्या शो करता है? हमारी स्ट्रेंथ्स. W stands for weakness. बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, दे स्टेट, सर हम अपनी वीकनेस क्या बताएं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू. हम क्या ऐसा बताएं जो हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएं और हमारा सिलेक्शन होने के कगार पर आ जाए कि भाई इसका सिलेक्शन तो श्योर है. क्या करें ऐसा? तो मेनी इंटरव्यूअर्स आर आस्किंग यू योर वीकनेसेस. बहुत से इंटरव्यूअर्स आपकी वीकनेसेस पूछते हैं. उस दौरान आपके पास ऐसा कोई सॉलिड जवाब नहीं होता जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार मैं कोई बड़ी वीकनेस ना बता दूं. तो लेट अस कम बैक कि लोगों में, आम लोगों में क्या वीकनेसेस है. लुक अप हियर. अगर हम एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को लेते हैं और उसकी देखते हैं उसमें क्या क्या वीकनेसेस है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हम किसी भी आम आदमी को लें तो एक वीकनेस हर इंसान में है. वो क्या है? इम्पेशंस. एग्री करते हो? Yes, sir. सेकंड मोर वीकनेस इज शॉर्ट टेम्पर. जल्दी से गुस्सा आना. शॉर्ट टेम्पर. एग्री? और बहुत से लोग ये भी अपनी वीकनेस बना के रखते हैं, क्रिटिसाइजर. क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? निंदा करना, राइट? और बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें कमी होती है कॉन्फिडेंस की. मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने इस पर्टिकुलर पार्ट को बिल्ड करने के लिए पीडी को ज्वाइन करते हैं. दैट इज देयर कॉन्फिडेंस. कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग विच इज देयर वीकनेस इज नेगेटिव एटीट्यूड. नकारात्मक सोच. ये भी कुछ लोगों में होती है. जितनी जल्दी वो हटाए उतना अच्छा है. अब स्टूडेंट्स, हम इसको एनालिसिस करते हैं, क्या वाकई में ये जस्टिफाइड है क्या? चलिए हम एक छोटे से पर्सन को, किसी को भी, एक ऑर्डिनरी पर्सन को ले लेते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी बिल्कुल सिंपल सी क्लरिकल जॉब के लिए जा रहा है एंड ही इज स्टेटिंग, सर माय वीकनेस इज, सर मैं इंपेशेंस बहुत हूं. आई हैव लोट ऑफ इंपेशेंस.
एंड सर आप मुझे जॉब देते हो तो ठीक है, वरना शाम को मैं एक और इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो बताइए आप मुझे लेते ही नहीं लेते? तो बताइए उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है कि कम है? कम है। इफ यू स्टेट सर आई एम शॉर्ट टेम्पर, आप मुझे ले रहे हो कि नहीं ले रहे, तो बताइए आपके चांसेस ज्यादा है कि कम है? फिर से कम है। एंड इफ यू स्टेट सर आई एम अ क्रिटिसाइजर, निंदा करना मेरी आदत है सर, बाहर जाके मैं आपकी निंदा करूंगा, आदत है सर, तो बताइए ये हॉबी, ये जो हम वीकनेस बता रहे हैं, ये जस्टिफाइड है कि नहीं है? नो, यू कांट से एनीबडी दैट मेरे को निंदा करना अच्छा लगता है, मैं आपकी जाकर बाहर निंदा करूंगा, राइट? कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, कॉन्फिडेंस। सर कस्टमर आएगा ना, मैं आपको बुला लिया करूंगा, बस बैठ जाऊंगा आकर, तो बताइए ये सही है कि गलत है? इवन कुछ लोगों की वीकनेस होती है वो पंक्चुअल नहीं होते टाइम के। सर 10 बजे बुलाया है सर, आई विल कम एट 12 o'clock, आज उठ जाऊंगा सर, राइट? तो ये भी गलत है। योर नेक्स्ट मेजर वीकनेस इज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो देयर इज वन पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव एटीट्यूड। तो सकारात्मक सोच के लोगों, नकारात्मक सोच के लोगों में सिर्फ इतना फर्क है कि एक छोटा सा बैलून वेंडर कुछ बैलून्स बेच रहा था, एक छोटा सा बच्चा उसके पास गया एंड ही स्टेट्स सर कौन सा बैलून ऊपर जाएगा, रेड जाएगा, ब्लू जाएगा, ग्रीन जाएगा? तो बच्चा बोला, तो उस बच्चे के आंसर के लिए जो बैलून वेंडर ने जवाब दिया, वो कहता है कि कलर डजंट मैटर, द थिंग मैटर इज हीलियम गैस। इसके अंदर हीलियम या हाइड्रोजन गैस कितनी है वो मैटर करती है कि ये बैलून कितना ऊपर जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, अगर कुछ लोगों की बॉडी बहुत कम है, अगर कुछ डार्क है, कुछ लाइट, कुछ फेयर है, कुछ लोग टॉल है, कुछ लोग शॉर्ट है, कुछ लोग फैटी है, डजंट मैटर। द थिंग विच विल मैटर इन योर लाइफ इज ओनली वन, दैट इज व्हाट? Your attitude, attitude, attitude. So if you have three things in your life, that is your ASK. ASK. As my student has stated me, attitude. Sir, attitude अगर हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं। Very good. सबसे पहली सोच ही attitude होती है। हमारा दृष्टिकोण बढ़ गया ना अगर किसी चीज के लिए, तो हमें उस चीज को पाने में कोई नहीं रोक सकता। आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक बड़ी एग्जाम्पल देता हूं आपको। रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन केंद्रीय विद्यालय। His name is Anil Punia. He got selected and he conveyed me, sir मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा डोंट वरी, तुम जहां जा रहे हो ना पोस्टिंग के लिए, वहां पर ऑलरेडी मेरे सिलेक्टेड बच्चे बैठे हैं। अमित कुमार आई थिंक हिज नेम इज, ही इज आल्सो इन केवी ओनली एंड अनिल आल्सो गॉट सेलेक्टेड इन केवी। दोनों जने आसाम गए, दोनों एक दूसरे से मिले। मुझे उम्मीद थी कि रवि कुमार जो जा रहा है पहले, उसके लिए मैं एक और व्यक्ति भेज दूंगा, मगर अब उन लोगों के लिए वो जगह नहीं रही, क्योंकि वो 2 हो गए, 1 और 1 11 होते हैं, और दे आर वेरी हैप्पी। Even my students are rendering their services in Shri Ganganagar also, Kendriya Vidyalaya. One of my best students, that is Mandeep Kaur. Now she got married also here, and her father has come to me, told that my daughter has an interview of Kendriya Vidyalaya. तो मुझे उनको देख के लग गया था ये पर्सनैलिटेड पर्सन है। मुझे ये नहीं पता था कि वो चेयरमैन है और एक बाल भारती स्कूल के ऑनर भी है, मुझे ये नहीं पता था। तो मैंने एक नॉर्मल समझा, मैंने कहा सर ठीक है। वो कहते सर आप आकर पढ़ा दो बच्चों को। मैंने कहा सर इतना तो पॉसिबल नहीं है। कहते सर एक्चुअली उन्होंने बताया नहीं कि मेरी बेटी ऑलरेडी मेरे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, अब तो वो केवी में आ गई, मगर प्रीवियसली। सो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ओके सर इट डजंट मैटर, आप ऐसा कीजिए, आप है ना थोड़ा अर्ली मॉर्निंग देख लो। तो कहते यार 8 o'clock पढ़ा दोगे? इट वाज अ विंटर सेशन। तो मेरे को लगा, मैंने कहा जरूर है ना बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, तभी इतनी जल्दी सर्दियों के सेशन में तैयार हो गए। मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1-2 अच्छे कैंडिडेट्स को बोल दूंगा, तो एक ग्रुपिज्म अपने तैयार कर लेंगे। कहते ठीक है। एंड वी स्टडीड हार्डली फॉर 12-15 days। हम लोगों ने कोई 12-15 दिन तैयारी करी होगी। शी वाज अ बॉटनी स्टूडेंट एंड नाउ शी इज अ बॉटनी टीचर ओनली। सो हम लोगों ने 15 दिन तैयारी। दैट डे केम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर विजिटिंग माय वन ऑफ द हॉली प्लेस एंड इट वाज 31st December. I was just planning to go somewhere to enjoy my new year. Suddenly she come with her parents and states that sir I got selected. I told very nice and distributed sweets also. It was a wonderful day for all of us. And student, these things come not in a single thing. It comes in one is your attitude. She made an attitude that I should not be a principal only of my school. I should do something else also. But the most second important thing is your skill. After your attitude, what you are to learn here? Skill, kala. Many of my PD students are delivering lectures here on this stage, on this dais, but many are still not giving. This is a drawback for us. I want all of you to come over here at least once in a month to deliver your dynamic lecture over here on any topic of your choice. This will boost up your confidence and develop your skills also. And the third part, which is quite important to achieve success, is knowledge. Once you get your skill, you need what? Knowledge. So 3 things, if it get
One is aptitude, skill and knowledge. All your weaknesses can be resolved. As I told you, your weaknesses. क्या आप इनमें से कोई भी वीकनेस बता सकते हो क्या आप बता सकते हो कि सर मैं एक नकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं और आने वाले टाइम में मैं भी डूबूंगा और आपको भी ले डूबूंगा, रख लो सर, तो बताइए वो आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे? They will not take you at all. So the thing which we should tell in our weakness is you should tell your light weaknesses. बड़ी लाइट सी weaknesses रखो, आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब आप कहते हो सर, कंसीडर करते हो कि सर वो लाइट वीकनेसेस होती क्या है, हम क्या ऐसा रखें जो इंटरव्यूअर को ऐसा भी नहीं लगे कि बहुत बड़ी वीकनेस रख दी है, बट एक नॉर्मल सी। द थिंग इज whenever you are going for interview and people ask you your weaknesses, you can state one weakness. Sir, I need to improve my handwriting. No doubt you can state that also. First point is handwriting and second point is need to improve my fluency, need to improve my grammar. अब मैंने आपके साथ 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, right? Come up here. When we tell, sir, I need to improve my handwriting. Students, हम कितनी भी अच्छी हैंडराइटिंग लिख ले, कोई एंड नहीं। Yes, sir. There is One thing again. Yeah. Coming on the next thing, हम कितनी भी इंग्लिश बोल ले, as many fluent you can be, as much fluent, but still we need an improvement. Agree? And the third important thing, grammar has no end. Presently, I am writing my book, my 4th book on interview, this grammatical English. So I have seen that there is no end in grammar. When I am reading any other writer's book, I found this thing is lacking, this thing is lacking. When I found in another writer book, I found this thing is lacking, this thing lacking. In every book, I am finding that few things are still lacking. ये चीज इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं, मगर कुछ नया जरूर है, but सब कुछ सब में नहीं है। तो which means what? कि हर व्यक्ति को हर बात नहीं पता। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे ऐसा लगा फॉर राइटिंग माई 4th बुक, क्योंकि मेरी 3rd बुक भी स्पोकन इंग्लिश पे थी, तो व्हेन आई एम राइटिंग माई 4th बुक, अब जो मैं लिख रहा हूं, इट हैज इंप्रूव मी ग्रामेटिकली अलॉट, आई फील एज इफ। तो स्टूडेंट, द मोर फोकस व्हेनेवर यू आर टेलिंग योर वीकनेस इज दिस, बट कभी भी अपनी वीकनेस तब मत बताना जब इंटरव्यूअर आपसे वो वीकनेस ना पूछे। आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा है, यू शुड टेल योर नेम, यू शुड टेल योर क्वालिफिकेशन, इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड यू कैन टेल आई एम एक्सपीरियंस्ड, और एक्सपीरियंस के साथ मैंने एक बहुत अच्छा वर्ड बताया आपको, दैट इज व्हाट? salubrious. और द more important thing after this is your hobbies. It should reflect your personality. तो hobbies के लिए मैं आपको हमेशा एक बात कहूंगा कि मेरे पास 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहे हैं। वन इज RAS, इस व्यक्ति का नाम था मिस्टर सुरेंद्र। Mr. Surendra has come to me. He is already working in income tax department, Hanumangarh, but he has come to me for RAS interview and he got selected. We have discussed only one thing with him, his hobbies. क्योंकि hobbies पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, उसी से आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। मेरा नेक्स्ट पर्सन जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, दैट इज मिस्टर नवनीत अग्रवाल। He has come to me for RGS और वो बड़ा यूनिक तरीके से मेरे पास आया। He told me, सर मेरे को ज्वाइन करना है। मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन कर लो सर। कहते ये सिस्टम है, मैंने कहा ये ठीक है सर, ये अमाउंट है, ये स्नैक्स वगैरह ठीक है, दे दिया सब कुछ, पढ़ने लगे। लास्ट वीक जब रह गया था, ही टोल्ड मी वन थिंग कि सर आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ जी। बराबर के से थे हम, तो कहते सर एक बात हो। मैंने कहा हाँ बताइए। कहते माई ब्रदर इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा क्या नाम है आपके ब्रदर का? तो उन्होंने नेम बताया। तो ही वॉज माई फ्रेंड इन 12th और मेरा वाकई में बहुत अच्छा दोस्त था वो समय। उसके बाद थोड़ी मुलाकात कम हुई, पर आज भी प्यार वही बना रहा। तो मैं नाम उसका जानते ही मैंने कहा अच्छा सर, योर ब्रदर नेम इज शिव, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनको भैया बोला। मैंने कहा फिर तो यार आप मेरे ब्रदर बड़े भैया हुए, आप मुझे ये बताइए आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो कहते यार मैंने इसलिए नहीं बताया, एक प्रोफेशनल टच टूट गया था। ही वॉज सच ए प्रोफेशनल मैन कि उसने मुझे पहले नहीं बताया, रिलेशन नहीं डेवलप किए, क्योंकि उसको पता था कि जैसे ही मैं बताऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई के भाई दोस्त हो, तो तुम मुझे सबसे पहले तो भैया बोलने लगे होगे और वो सर वाली फीलिंग तुम्हारी गायब हो जाएगी। तो तुम मुझे इतना स्ट्रिक्टली नहीं लोगे जो तुम मुझे इस समय स्ट्रिक्टली ले रहे हो। मैंने कहा बहुत आपने माइंड से बात करी, कितनी आपने माइंड चलाया। कहते नहीं यार जरूरी था ये प्रोफेशनल टच, मेरे को अगर लेना था ना आपसे तो मैंने आपको नहीं बताया, ये अच्छा किया। और लास्ट वीक ठीक है, जो लास्ट वीक रह गया, 4-5 दिन रह गए हैं, दैट टाइम डजंट मैटर। हाँ, और एक बात सच है ये बात कि जब हम थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं किसी से, तो हमारी
जो साउंड है, जो बात करने का है, वो हम बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं सामने वाले से कि भाई ये तो हमारे दोस्त का भाई है, राइट? पर उसने ऐसा होने नहीं दिया. दैट वाज रियली नाइस सिंबल. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कमिंग योर दिस पर्सन सिलेक्शन who got selected in RGS. That was the name of, his name was Navneet Agarwal. Most important person for personality development is a lieutenant, Mr. Saurav Bhatt. He has come to me from Sadhu Ali Kent. Yes, yes, from your school only. yes, sir. From your school. From your school, and he got 10 CGPL, and in 12th also he scored the highest in Shri Ganganagar. Yes. He come to me, he told me, sir, only one, his father is a clerk over there only, and he told me, sir, my son want to go for lieutenant interview, please make him prepare. And we prepared so well that I placed one of his interview also on my YouTube channel. It was very fantastic. If you get an opportunity, do see his lecture during, do see his interview especially. You will definitely get impressed the way he is speaking. And he got selected, and today he is doing his training of lieutenant. And after his selection, although there were so many army officers were coming, but after his selection I have seen lot many persons, like even Mr. Pathak is sitting, even Mr. Manoj, and I have seen that Mr. Mahipal has come to us for this SSB interview, and many others. There was almost a line of these people, those who want to go for SSB and they want to crack an interview. Such things are only being possible if you work out on your SWOT analysis, because one thing you know, if you tell your strength, people will definitely ask your weakness. अगर आप अपनी strength बताओगे, लोग आपसे आपकी weakness जरूर पूछेंगे. And the more important thing is your OT. It stands for your opportunity and your threats. Although these both things are not in our hands, ये दो चीजें हमारे हाथ में कभी नहीं होती हैं. But I should say कि opportunity मिलती उसको ही है जिसने अपनी strengths को बहुत raise किया होता है और अपनी weaknesses को बहुत कम किया होता है. Threat. A big threat can come anytime in our life. हमारी लाइफ में कभी भी आ सकता है. Even death is a big threat. So अगर हम उसको लेकर बैठ जाए तो अब भी हिमालय में जा सकते हैं. ऐसा नहीं है, हम सोशल एनिमल है. We are supposed to work here. So we can't go with threats always. We should always try to improve our strengths and remove our weaknesses. Right, students? When we have said so many things about ourselves, हमने 5 बातें इकट्ठी कर ली है कंक्लूजन में. One is your name. Another is your qualification, another is your hobbies, another is your aim, and last but not the least is your strengths. हमने ये इतनी बातें अपनी इंट्रोडक्शन में यूज कर ली है. क्या आपको लगता है कि ये हमारी जितनी भी बातें हैं ये जस्टिफाइड है या ये इनफ है? ये इनफ नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन 5 बातों को आप बोल के देखो, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है. एग्जाम्पल, Madam, please give your introduction only 5 days. Your name, Haji. Okay, my name Please take the time. I want you to do only one thing. Time, please. My name is Ritu Pava. I am MA MEd, and I have also done a diploma in pharmacy. My hobbies are reading and painting. My strength is my confidence. Thank you. Up, see student, please take a seat, madam. Thank you very much. We have made this intro only in 15 seconds. 15 seconds के अंदर हमने इस इंट्रो को पूरा कर दिया है. क्या आपको लगता है इज इट इनफ? इट्स नॉट इनफ स्टूडेंट्स. ये इंट्रो इनफ नहीं है. मगर हम अगर एनालिसिस करें इन द पीपल लाइक गंगानगर, मैनी पीपल आर नॉट इवन हैविंग सच लाइन्स. इवन लोगों के पास ये 5 लाइनें भी नहीं होती है. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर सपोज वी आर टू गिव एन इंटरव्यू ऑफ इन चंडीगढ़, वी आर सपोज टू गो अब्रोड, हम लोगों को सो मेनी अदर्स प्लेसेस पे इंटरव्यू देने हैं, मुंबई में इंटरव्यू देना है, एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देना है. क्या ये 5 लाइनें जस्टिफाइड है? तो मैं कहूंगा नहीं. रीजन इज व्हेन यू आर सेइंग दिस 5 थिंग्स, यू आर नॉट अ परफेक्ट पर्सन, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑर्डिनरी फॉर दोज पीपल. उन लोगों के लिए बड़ी आम बात है. अपना नाम बताना, अपनी क्वालिफिकेशन बताना कोई बड़ी बात है. गंगानगर के लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो बता सके इतनी बात. वो अपने पेरेंट्स पे आते हैं बहुत जल्दी कि पापा ये करते हैं, मम्मी ये करते हैं, मगर वो लोग इजीली बता सकते. तो हम कैसे अपने टैलेंट को डिफरेंट कर सकते हैं? वी शुड नो फ्यू मोर थिंग्स. And the best thing is you should tell, I'm giving you a hint, you should tell about your city. आप अपनी सिटी के बारे में बता सकते हैं. सर आई बिलोंग टू श्री गंगानगर, और कुछ अच्छा पॉइंट रख सकते हो उसके लिए. सर विच इज ऑल्सो नोन एज द फूड बास्केट ऑफ राजस्थान. हमारे गंगानगर को कहा भी जाता है फूड बास्केट. तो आप ऐसा कुछ कह सकते हो. हनुमानगढ़ से अगर कोई बिलोंग करता है, यू कैन से आई बिलोंग टू हनुमानगढ़, विच इज फेमस फॉर इट्स बटनेर फोर्ट एंड काली दिस
One civilization is also there, Kalibangan civilization. You can state such things. It gives a good impression in the eyes of an Indian. But is it enough? Is it again not enough? So you should have a talent to tell something more about yourself. एक बहुत अच्छा वर्ड होता है स्टूडेंट, versatile. सुना आपने किसी ने? उसका मतलब होता है adjustable. तो you should use such words कि sir my friends call me a versatile personality. कि मेरे फ्रेंड्स मुझे versatile personality कहते हैं because of my adjustable nature. क्योंकि मेरा नेचर क्या है? बड़ा ही एडजस्टेबल है, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स versatile कहते हैं. ऐसा कुछ इंप्रेशन डालो अपनी पर्सनालिटी का. अब हमने एक दो बातें तो ऐड ऑन कर दी, क्या कुछ और हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता? यू कैन इवन से सर मुझे पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है. आई लाइक टू मीट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी पीपल एंड लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स फ्रॉम देम. और उनसे नई नई बातें सीखना भी बेहद पसंद है. इफ यू स्टेट लाइक दिस ही विल डेफिनेटली गेट इंप्रेस्ड फ्रॉम यू. यू कैन स्टेट मोर थिंग्स. आई एम अ जोवियल पर्सन सर. मैं एक प्रसन्नचित व्यक्ति और अपने माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकता. आई एम अ जोवियल पर्सन. आई डोंट लाइक एनीबॉडी टू रिमेन सैड इन माय कंपनी. मैं अपने माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकता. You can even state more things. I'm a team spirit person. Team spirit का मतलब होता है हर किसी को साथ में लेकर चलने वाला व्यक्ति, अकेले अकेले सब कुछ ना रखने वाला व्यक्ति. You can state sir I'm a team spirit person. I don't try to hold all the credit. मैं सारा श्रेय खुद नहीं करता, मिल बांट कर खाने में विश्वास रखता हूं, तो मैं सब लोगों को साथ में लेकर चलता हूं. Even you can state my hobby is reading, so you should pressurize only on one thing. Recently I have read this book. आप इंप्रेशन डालो. अगर सिर्फ एक बुक पढ़ के जाओगे तो प्रॉब्लम में आओगे. फिर से करो. So the best thing is you should prepare well in every aspect. You can state more things about yourself, but the thing is which really suits you, जो आप में सूट करे. आप कहते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, बिल्कुल गलत नहीं है, मगर आपकी आईज कहनी चाहिए कि आप सच्ची में कॉन्फिडेंट हो. कुछ बच्चों की आईज ऐसी होती है कि अभी शीशा तोड़ के पत्थर मारे बस भागे, शैतान सी आईज होती है, और वो बोलते सर मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं. ऑनेस्ट सर, तो बताइए लगता है क्या ऑनेस्ट? और कुछ लोग बड़े ढीले ढीले ऐसे गिरे वैसे होते हैं, थप्पड़ लगा तो नीचे गिर जाएंगे, और वैसे बोलते सर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं. तो बताओ अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लगा. तो आप लेट पहुंचे, आपका सर मैं पंक्चुअल हूं, आज लेट हुआ, तो इंप्रेशन गलत है. राइट स्टूडेंट्स, ये तो पार्ट हुआ हमारी एंट्रेंस का. जैसे अभिमन्यु एंटर हुआ था महाभारत में, आपको पता होगा, हाँ चक्रव्यूह में, और उससे बाहर निकलने का उसे तरीका नहीं था. बट ड्यूरिंग दिस सेमिनार हम कोशिश करेंगे कि हम एंटर तो हो गए इंटरव्यू को क्रॉस करने में, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ही होता है मैक्सिमम. मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा ही होता है, मगर 80% ये होता है. अब हम चलते हैं थोड़ा सा एंटर करते हैं कि वाकई में जब इंटरव्यू होता है तो क्या अगर हम सच्ची में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल, कैसे पॉसिबल? तो है पॉसिबल स्टूडेंट्स. यहां पर बैठे हुए टीचर्स जितने भी हैं उनको मैं बता दूं कि इस समय यू गो विद एनी पार्ट ऑफ गंगानगर, इफ यू गो विद एनी स्कूल यू विल फाइंड आवर टीचर्स. वेदर इट इज नोसगे, वेदर इट इज BDIS, वेदर एनी स्कूल ऑफ गंगानगर यू विल फाइंड आवर स्टूडेंट्स. वेदर बैंक, recently one of my girls selected for ICICI Bank. Her name is Ekta Sharma. We are proud of her. Recently, almost not recently, I should say, it's years back, one of my student Palvi Miglani, she got selected in Axis Bank, and she was quite happy. So presently also so many candidates are reaching us for such things, and they get impression with their selections. So if you are selected, you are important for us, and if you don't get selected, you are not important for us, because we work for everybody. हम सबके लिए काम करते हैं. सिलेक्शन हर किसी के नहीं होते. सिलेक्शन कब होते हैं? जब ये आप मान लो कि मेरे को सिलेक्शन करवाना ही है, एनी कोस्ट आई हैव टू बी सिलेक्टेड. अब स्टूडेंट्स हम अपने पार्ट को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं कि हम चक्रव्यूह में आ तो गए हैं, इसमें एंट्रिंग करके फाइट कैसे की जाए. और अभिमन्यु लॉस में था, हम लॉस में नहीं रहेंगे. हमारे साथ अर्जुन है और लॉर्ड कृष्णा भी है. एग्री करते हो? तो जब हमारे साथ अर्जुन भी है, अर्जुन भी कहीं दूर नहीं है अभिमन्यु के साथ इस समय, और लॉर्ड कृष्णा का हमारे साथ रहता ही है, तो फिर अभिमन्यु को मरने देंगे क्या? नहीं मरने देंगे. राइट. तो आप एंटर तो कर गए हो इंटरव्यू सेशन के अंदर. अब हम करते हैं कि वाकई में जब इंटरव्यू होता है तो हम ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं जो हमारा सिलेक्शन नहीं होता और सामने वाले का हो जाता है. ऐसा क्या होता है? तो लेट अस, आई नीड 2 वॉलंटियर, प्लीज गेट अप. अंदर एक चेयर है, फटाफट बाहर ले आओ इसको, ये ब्लू रंग की, और ये चेयर में मैं हेल्प कर देता हूं. हाँ बस धीरे धीरे इसको प्यार से ले आओ यहाँ पर. हाँ ब्रिंग इट हियर. यस, इसको टर्न कर दो मेरी तरफ बिना उठाए. हाँ वेरी गुड. स्टूडेंट्स, दिस इज अ सेशन. यू प्लीज कम दिस साइड. एंड आई वॉन्ट 2 personalities. One more chair please bring. One boy I need. So better you come. आ जाओ. First time we are seeing your face. आओ. He is my very talented boy, Mr. Kamal. Kamal, come this side. Better, please. Better. Any female member I need. Better, would you like to come?
क्लियर? मैडम डर है आपको? मैडम डर के निकालना मेरा काम है, प्लीज आइए। आइए मैडम, कम फास्ट। सो नाउ वी हैव 2 members, they have come to me for an interview. Come in this manner. हाँ बेटा प्लीज कम दिस साइड आइए, तो आप ज्यादा क्लियर नहीं पाओगे। मैडम प्लीज कम ऑन योर सीट। हाँ स्टूडेंट, जब कोई हम इंटरव्यू देते हैं, अब हम एंटर कर गए हैं, इंट्रोडक्शन आपने दे दिया है, राइट? अब आपके पास क्या चीज है? अब आपको अपनी शुरुआत करनी है, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब आप कंफर्टेबल हो चुके हो उसकी कंपनी में, राइट? कंफर्टेबल कैसे होना है मैं आपको लास्ट में टीच कर दूंगा, मगर इस समय जो मैं आपको टीच करूंगा वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज को सीखने का एक बहुत अच्छा वे है स्टूडेंट्स, उसको हम देखते हैं। आप लोग नोटिस करना कुछ बातों को। ड्यूरिंग दिस आई विल टीच यू सो मेनी थिंग्स, और मैं चाहता हूं कि आप उसको इतना अच्छे से सीख लो कि जब आप इंटरव्यू चैम्बर में जाओ या कहीं भी खड़े हो तो आपसे मिस्टेक ना हो कहीं भी बॉडी लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स मेरे सामने 2 इंटरव्यू बैठे हैं, और मैं ये कहूंगा, और ये करोड़पति राइट? सो वेलकम बोथ ऑफ यू, राइट? आप 1 करोड़ रुपया कमाने आए हैं। ठीक है, तो हम लोग इंटरव्यू देने आइए स्टूडेंट्स, राइट? अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इनके पोस्चर्स देखने हैं, राइट? अगर ये इंटरव्यू देने आइए तो इन दोनों के पोस्चर इसमें सही नहीं है। वेरी गुड विमला मैडम, यू आर हेल्पिंग देम, इट इज नाइस दैट यू आर हेल्पिंग, बट द थिंग इज व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू यू शुड हैव योर पोस्चर इन दिस मैनर। आपको Sir, I can't sit इस properly. ओके मैडम, नाउ इज इट विजिबल? Yes, sir. Okay, now it is visible. So the thing is, you should keep your hands like this. Never ever like this. इसका मतलब है मैं एग्री करूंगा ही नहीं, जोर लगा लो। मेरे को आप हरा ही नहीं सकते इंटरव्यू में, जोर लगा लो, इसका मतलब ये है। तो प्लीज कभी भी हाथ ऐसे मत रखना। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैं हाथ ऐसे रख सकता हूं सर? तो आप ऐसे भी मत रखना। यू कांट कीप दिस, यू हैव टू शो दैट आई एम नॉट अ नर्वस पर्सनैलिटी, क्योंकि जब आप ऐसे हाथ रखते हो आप नर्वसनेस शो कर रहे हो। जब आप ऐसे हाथ रख रहे हो आप टीचर की अच्छी क्वालिटीज क्या है, तो क्या आप कुछ मुझे बता सकती है 2-3 बातें जो सामने वाला इंप्रेस हो जाए आपसे? प्लीज प्लीज स्पीक लाउडली मैडम। टीचर की यही सबसे अच्छी है कि बच्चों के साथ वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाए। मिक्सअप हो जाए, बिल्कुल सही है। और कोई पॉइंट मैडम आपको लगता हो? ठीक है, देखिए जब कभी कोई टीचर की क्वालिटीज आपसे पूछे तो यू शुड स्टेट इन सच ए मैनर दैट सर एज यू नो टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। तो सबसे पहले एज यू नो बोलते ही क्या है, सामने वाला बड़ा रिलैक्स हो जाता है। सामने वाले को लगता है कि सर मैं बड़ी रिलैक्सिंग पोस्चर के अंदर हूं, और सामने वाला बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि सर अच्छा एज यू नो, अच्छा मैं जानता हूं, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो आपकी शुरुआत हो सकती है, सर एज यू नो टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, ही शुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स। सर उसके स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये हाँ, इज इट ओके, कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? स्टूडेंट्स प्लीज लुक अप हियर। Whenever we are going with interview, you will say, sir, it is a noble profession, one thing. And the second thing which you say is that he should have empathy towards the students. Third thing you can state, he should inculcate morals and boost the moral of the students. He should inculcate values and boost the moral of the students. अगर ऐसी बातें आप करते हो, and he is responsible to make him a good human being, a good citizen of the nation. And whenever his students do something good, he is responsible to reward him with appreciation. अगर आप ऐसी 1-2 बातें कर लेते हो तो सामने वाला जरूर आपसे इंप्रेस होगा कि रियली ही नोट्स द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। अब मेनी ऑफ द पीपल आर हियर सिटिंग, दे से मी सर हम बैंक के लिए जा रहे हैं, तो द बेस्ट आंसर क्या है सर बैंकिंग के? तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर गोइंग फॉर बैंकिंग जॉब, स्पेशली यू एंड सुभाष, इफ यू आर गोइंग फॉर बैंकिंग जॉब, तो द बेस्ट थिंग यू शुड से सर दिस इज अ पोटेंशियल सेक्टर। सर सबसे ज्यादा तो ये पोटेंशियल सेक्टर है, इसलिए मैं आना चाहता हूं। Meeting new personalities, making new friends are my hobbies, which itself are the part and parcel of this job. इस सब नए लोगों से मिलना, नए कार्य करना इस जॉब की मतलब कि आप जरूरत है, जो मेरी हॉबीज भी है। इसके अलावा आप कह सकते हो रेगुलरिटी इन वर्किंग एनवायरनमेंट, क्योंकि यही एक ऐसी जॉब है बैंकिंग जहां पर कोई छुट्टी नहीं होती, सबसे कम छुट्टियां बैंकिंग में होती है। टीचर्स के लिए आंसर नहीं दूंगा क्योंकि टीचर्स बहुत एंजॉय करते हैं। तो द थिंग इज बैंकिंग में जरूर कहूंगा कि रेगुलरिटी इन वर्किंग। अब इस बात को पॉजिटिव लो ना, आप वहां पर नेगेटिविटी क्यों शो करते हो? सर छुट्टी नहीं होती सर इस जॉब में, सर फिर भी कर रहा हूं सर क्योंकि और कोई जॉब नहीं मिली। तो आप ऐसा आंसर मत देना, आपको जो आंसर देना है वो जस्ट प्रोफेशनल देना है
कि सर आई वांट टू गो विद दिस जॉब बिकॉज रेगुलरिटी इन वर्किंग एनवायरनमेंट मेक्स अस टू रिमेन फ्री फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग होता है बच्चों जंग लगना, तो रेगुलरिटी रहेगी किसी काम में तो बताइए आपको जंग लगेगा क्या? राइट अगर हम अपनी एजुकेशन को रेगुलर रखें तो हमें जंग लग सकता है क्या? और मुझे लग सकता है अगर मैं रेगुलर पढ़ाऊं तो? नहीं लगेगा। हाँ अगर आप 2 दिन का गैप कर दें, 1 हफ्ते का गैप कर दें तो कुछ माइंडसेट हो जाता है, मगर आप डेली पढ़ा रहे हो, डेली एजुकेशन दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द सेम केस हियर, मोर इंपॉर्टेंट यू कैन स्टडी वन, सर बैंक प्रोवाइडर्स वेरियस फैसिलिटीज which are quite necessary for a middle class person like me also. सर हमें बहुत सी मॉनेटरी फैसिलिटीज भी बैंक देता है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी मेरे लिए जरूरी है। अगर ऐसी बातें आप इंटरव्यू के दौरान कर लेते हैं तो वो आपसे बहुत बहुत इंप्रेस कर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू सेज यू अ वेरी गुड क्वेश्चन, ही सेज यू व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें सेलेक्ट करूं, ऐसी क्या बात है? तो जब कभी वो आपको ऐसा बोले मैं तुम्हें क्यों सेलेक्ट करूं, सबसे पहले तो हर व्यक्ति, यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति अपनी बड़ाई करेगा। मानते हो? मैं आपको क्यों लूं? एक लाइन बोल दो सिर्फ। Because I am confident. देखो इन्होंने क्या बोला, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट। मैं इनसे पूछूंगा ना, ये कहेंगे आई एम गुड, आप कहोगे बेटर, वो कहेगा बेस्ट, और वो जो इधर होगा वो कहेगा सर इन सबसे ज्यादा ढंगा करता हूं सर, वही कहेगा बस बात खत्म करो। तो द थिंग इज, हम हर कोई क्या करेगा, अपना अपग्रेड करेगा, अपनी बड़ाई करेगा। एग्री करते हो? आप बड़ाई मत करो, आप डिफरेंट हो जाओ दुनिया से। कैसे हो गए स्टूडेंट्स? वन वे इज देयर। वो वे क्या है? वो वे है कि जब कभी आपसे कोई पूछे कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं, आप उससे पहले तो उसी की बात में ना धन्यवाद दो। कैसे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैडम सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये अवसर मिला है। अब कभी कभी वो आपको बीच में कोऑर्डिनेट कर देगा, आपको क्या करे, आपको रोकेगा और आपको कहेगा यार हमने आपको लिया ही नहीं है अभी, किस बात का धन्यवाद दे रहे हो आप? 99% ऐसा कभी नहीं हुआ है, मगर हो भी तो सकता है। उस समय आप बोलना सर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू रिस्पेक्टेड पीपल, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। मुझे आप जैसे रिस्पेक्टेड लोगों के समक्ष बैठने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो बताओ वो खुश होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। और यू कैन स्टेट वन थिंग, सर अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं, यू आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माय ड्रीम्स, सर मुझे मेरे सपनों को साकार होने को अवसर दे दे, तो ही विल डेफिनेटली फील गुड। हाँ उसके बाद बढ़ाई जरूर करो यार, ऐसा नहीं आप बढ़ाई ना करो, अपने बारे में बहुत अच्छा कहो। आई एम डिटरमाइंड डेडिकेटेड पर्सन सर, स्पेशली टुवर्ड्स माय वर्क। मैं अपने कार्य के प्रति दृढ़ निश्चयी और समर्पित व्यक्ति हूं, खास करके अपने कार्य के प्रति। एंड आई एश्योर यू सर दैट इफ यू सिलेक्ट मी, आई जस्टिफाई सिलेक्शन बाय वर्किंग सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। सर अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपके सिलेक्शन की कसौटी पे खरा उतरूंगा, ऑनेस्टली और सिंसियरली कार्य करके। बहुत इंप्रेस होगा। हाँ एक पंचलाइन जरूर दिया करो आंसर्स के अंदर, जब कभी आप आंसर दो एक पंचलाइन दिया करो लास्ट में, उससे ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे सर या मैडम आई रियली नीड वन चांस टू शो माई स्ट्रेंथ्स। मैडम वास्तव में मुझे एक चांस चाहिए मैडम कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को शो कर सकूं, तो वो बहुत ही खुश होगा। वो कहेगा वाह यार हर किसी ने अपनी बड़ाई करी है, तुमने आपने क्या किया, इंट्रो अलग रखा, कंक्लूड अलग रखा, अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी अपनी बड़ाई करी, बाकी आपने एक जस्टिफाइड आंसर बनाया। मैनी टाइम्स ही सेज यू, कमल आप इंटरव्यू के लिए आए हो, बैंक का आप एसओ की तैयारी कर रहे हो हमसे इंटरव्यू की, हमारे पास बहुत कमल आए हुए हैं यहाँ पर, आप जैसे ही है, आप जितनी एजुकेशन है और आपसे ज्यादा भी है, हम सिर्फ आपको क्यों लें? कभी कभी वो आपसे ऐसी बात करेगा, ही विल कंपेयर, तो कभी भी थैंक्स से शुरुआत मत करें, क्योंकि वो कुछ और सुनना चाहता है आपसे। मैडम से कहेगा मैडम आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, हमारे पास 10 टीचर हो रहे हैं और आप जितनी क्वालिफाइड है कुछ तो आपसे भी ज्यादा है, मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं मैडम? तो वो इस आंसर के अंदर आपको थोड़ा सा विटफुल आंसर देना चाहिए। आपको कहना चाहिए सर यद्यपि इस समय मैडम या सर मैं अपने आप को उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकती या सकता जो कि मेरी तरह क्यों में खड़े हैं, पर मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि मैं एक ये पर्सनालिटी हूं। इंग्लिश में बोलना है, यू कैन स्टे सर ऑल्दो एट प्रेजेंट आई कांट जज अदर्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, हु आर स्टैंडिंग इन अ क्यू लाइक मी, जो कि मेरी तरह कतार में खड़े, बट आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, पंक्चुअल हूं, ऑनेस्ट, जो मर्जी बताओ, मगर आपकी शुरुआत कुछ ऐसे होनी चाहिए। एग्री करते हो स्टूडेंट्स? यस सर। मैनी टाइम्स इंटरव्यू वुड आस्क यू कि सर आप कितने दिन हमारे यहां रहोगे? मैडम आप स्कूल में लग तो रहे हो हमारे यहां, आप कितने दिन रहोगे हमारे साथ? तो इस क्वेश्चन का कोई जवाब है? जवाब नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आपसे पूछ रहा है उसके पास भी आंसर नहीं है। वो बड़ा नौकर है, आप छोटे नौकर बनने जा रहे हो, इतना ही फर्क है। ना तो वो मालिक है ना आप मालिक बनने जा रहे हो, मालिक कोई और ही है,
ये तो क्या है, आपसे बड़ा मैनेजर है, आप छोटे मैनेजर हो, इतनी बात होगी। तो ये बात आप उसको तो नहीं कह सकते कि सर आपका पता है क्या, आप कितने दिन रहोगे, आप उसको नहीं पूछ सकते, राइट? पर आपको आंसर तो देना है। अब ये बड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। अब कमल की तो मैरिज नहीं हुई, तो सुभाष की मैरिज हुई भी है, और सुभाष की लास्ट ईयर ही मैरिज हुई थी, तो सुभाष से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि सुभाष से पूछ लिया, सुभाष आजकल वाइफ आपको पीट रही है या पीटना छोड़ दिया, हाँ या ना में जवाब दो। तो सुभाष कहेगा हाँ। इसका मतलब क्या है कि छोड़ दिया, मगर पहले इसने बहुत मार खाई है। सुभाष कहता है ना, इसका मतलब आज ही मार खा रहा है। तो इस बात का कोई आंसर है ही नहीं कि आप हमारे यहां कितने दिन रहोगे, क्योंकि अगर आप सच बता देते हो, इफ यू सेड सर मैं आपके यहाँ ना 6 महीने रहूंगा, फिर कोई ढंगी नौकरी देखूंगा और काम पे लगूंगा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप कहते हो सारी जिंदगी सर आपको की सेवा करनी है, तो भी आप झूठ ही बोल रहे हैं। तो इस बात का आंसर तो है ही नहीं। तो आपके पास फिर से एक डिप्लोमेटिक आंसर होगा, यू शुड स्टेट सर एज यू नो। तो क्या होगा, एक आधे आंसर के अंदर एज यू नो जरूर बोल, सब में बोलने लगे ना इंट्रोडक्शन में सर एज यू नो मेरा नाम ये है, राइट? मगर एक आधे आंसर के अंदर आप बोल सकते हैं सर जैसा कि आप जानते हैं जीवन में 2 तरीके के सेटिस्फेक्शन, एक है जॉब सेटिस्फेक्शन और एक है मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन। सर इन लाइफ एज यू नो वेरी वेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। वन इज जॉब, ऐसे मत कर रहा हूं उसके सामने, बस इसे बताने के लिए। वन इज जॉब सेटिस्फेक्शन, अनदर इज मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है बच्चों? जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो आप उसमें संतुष्ट हो गए, आपको अच्छा लग रहा है क्या कर रहे हो। और मॉनेटरी क्या होता है, पैसे संबंधी, कि वो एक जरूरी बुराई है तो वो भी चलती रहनी चाहिए साथ। सर ये दोनों सेटिस्फेक्शन जब तक पैरेलल चल रही है तो मेरे को क्या जरूरी है सर चेंज करने का? तो आपने सब कुछ कह दिया उस बात के। सर एज यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, वन इज जॉब अनदर इज मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन व्हिच इज अ नेसेसरी इविल ऑफ लाइफ। सर व्हेन बोथ दीस सेटिस्फेक्शंस मूव्स पैरेलल, जब ये दोनों सेटिस्फेक्शंस पैरेलल चलेंगे तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी चेंज। तो मुझे नहीं लगता सर एनी चेंज की जरूरत है। तो कहेगा हाँ यार। उसके बाद वही पंचलाइन डालो एक, और हर पंचलाइन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि दूसरा आदमी ना पिघल जाए, उसका हार्ट अटैक हो जाए, वाह यार क्या बात कह गया बंदा, दिल को छू गया। ऐसी कुछ बात होनी चाहिए। मैडम आई डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ। मैडम मैं अपनी लाइफ में रुड़कने वाला पत्थर नहीं बनना चाहता। तो आप बताइए जब आप इस तरीके का आंसर दोगे या ये लाइन कहोगे, क्या वो इंप्रेस नहीं होगा? ही विल डेफिनेटली गेट इंप्रेस। ये क्या बोल रहा है पर्सन? ये बोल रहा है कि मैं अपनी लाइफ में रुड़कने वाला पत्थर नहीं बनना चाहता। आज आपको छोड़ दूं, कल उनको छोड़ दूं, कल उनको छोड़ दूं, इधर नौकरी कर लो, उधर कर लो। नो, आई वांट टू बी ए बेटर जॉब, बेटर पर्सन, और ये मुझे जस्टिफाइड लगे। जब आप इस तरीके का आंसर दोगे, he will definitely get impressed. Many times interviewer asks you your salary. बच्चों से क्या पूछ लेते हैं? कितनी तनख्वाह चाहिए? आप हमारे स्कूल में आ रहे हैं मैडम, आप कितनी तनख्वाह लोगे मैडम? अब मैडम के पास जवाब नहीं है। मैडम भाई क्या बोलूं, ज्यादा बोल दिया तो ये कहेंगे यार हम नहीं दे सकते, ये मैडम चली जाएगी, और कम बोल दिया तो इनकी प्रेसिंग कर, क्या बोले, राइट? हैपेंस। तो सैलरी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जस्टिफाइड आंसर अगर हम दें तो हम ये कहेंगे कि एक एक्सपीरियंस पर्सन को सैलरी का आंसर अलग देना चाहिए और एक फ्रेशर को अलग देना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर है तो आपका आंसर अलग होगा, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपका आंसर अलग होगा। जब आप फ्रेशर हो, क्योंकि यहां पर बहुत से बच्चे फ्रेशर है, तो सबसे पहले मैं फ्रेशर की बात करूंगा। अगर हम फ्रेशर है तो हम बात करेंगे कि मैडम, सपोज मैडम आप मुझसे पूछिए हाउ मच सैलरी डू यू वांट? डू यू वांट? मैडम सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर यू। ओनली जरूर लगा देना, वरना पता क्या कहेगा, कर ले फिर कल से काम, 6 महीने बाद दे दूंगा पेमेंट, जो देने होंगे 1000-2000 रुपया। तो ओनली कहने का यही मतलब है कि जब वो तुम्हें टोके या रोके ना तो हल्का सा स्माइल करते कहता मैडम मैंने ओनली कहा था, जरूरत तो है मगर सिर्फ जरूरत, मतलब उसके साथ। सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी। जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, फिर उसको इंप्रेस करो। हाउएवर आई एम श्योर दैट इफ यू मेक मी एन ऑफर इट विल बी इक्वल टू माय क्वालिफिकेशंस एंड द करंट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। मैडम सिर्फ सैलरी मेरे लिए जरूरी नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी मुझे इंपॉर्टेंट है, और मुझे श्योर है मैडम जो भी आप मुझे ऑफर करोगे वो मेरी क्वालिफिकेशंस और आपकी करंट सैलरी स्ट्रक्चर के अनुरूप ही होगा, तो उसे अच्छा लगेगा। ये जवाब फिगर्स में नहीं बोलते। हाँ, जब आप एक्सपीरियंस लो तो आपके पास एक जस्टिफाइड लाइन होगी
शुरुआत आप कर सकते हो उसी से, मगर हाउएवर वाले थोड़ी सी डिफरेंट कर। सर, अ जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क, देयरफॉर डिजर्व्स अ सुटेबल इंक्रीज। एक जॉब चेंज के अंदर थोड़ा सा रिस्क रहता है सर, तो डेफिनेटली कुछ इंक्रीज तो हो गई। फिर आ जाओ आप नेगोशिएशन पे आ सकते हो, मगर सीधा अगर आपको बोले सैलरी मैडम 10 लूंगा तो कितना बुरा लगता है ना, अगली कहीं खड़ा हो राइट। तो यू कांट सेट सच थिंग्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, राइट स्टूडेंट्स। फिर अलग अलग जॉब्स का अलग अलग महत्व है। अब हम चलते हैं कि हम जब जवाब दे रहे हैं उस दौरान हमारी पोस्चरिंग क्या हो, क्योंकि अब हम फाइट के अंदर आ गए हैं, अभी मंजूर चक्कर में आ गए हो, राइट मैडम। अब आप इस चक्कर से बाहर नहीं जा सकते, मतलब सीट को आप छोड़ के नहीं जा सकते, राइट। आप तभी जा सकते हो जब सब कुछ आपको आ जाए। तो आप मेरे साथ खड़े हो दोनों जने, यहां आइए, यूं खड़े हो जाओ उस चेयर के पास। ये चेयर आपकी है लेडीज, आपको दिख रहा है सब कुछ, श्योर है, राइट। नहीं आप उधर जाओ अपनी चेयर के पास, राइट मैडम, आप अपनी चेयर के पास जाओ। हाँ बस यही। अब आप ये एज्यूम करोगे कि इंटरव्यू यहां बैठा है और आप लोग यहां आ रहे हो, चेयर के पास आ चुके हो। मैं भी ये एज्यूम करूंगा कि इंटरव्यू मेरे सामने बैठा है, मैं भी चेयर के पास आ चुका हूं। सबसे पहले मैडम आप बैठिए। आप मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं, तो मैं बैठ जाता हूं और आपको यहां बैठना है। आप मुझे विश करोगे और बैठ जाओगे, प्लीज विश कर दो। ऐसा एज्यूम करो ना, इंट्रो देने हैं। गुड आफ्टरनून मैडम, बैठने के तो बोला ही मैडम, आप पहले बैठेंगे। तो इंटरव्यू का गोल्डन रूल एक ही है मैडम, वो ये कि आप जब तक नहीं बैठेंगे जब तक वो आपको परमिशन ना दें। अक्सर हम ऐसे ही करते हैं, डर के मारे हम ऐसे जाते हैं, सर गुड मॉर्निंग सर देखना जरा, बैठ जाते हैं, राइट। तो ऐसा कभी मत करना, वो कभी आपसे इंप्रेस नहीं होगा। आपका फर्ज है आप पहले खड़े हो, यूं खड़े हो जाओ, विश करो बढ़िया सा। विश कैसे करना है, इधर देखो, 3 जेंट्स 1 लेडीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग मैम। 2 जेंट्स, सिर्फ 2 जेंट्स है, गुड मॉर्निंग सर। बस 1 जेंट्स 1 लेडीज, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मैडम सर कोई बात नहीं, आगे पीछे बोल दो, मगर दोनों को बाइफरकेट कर। 2 लेडीज है 2 सर है, तो देखो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, और कुछ मत कहना। लोग अक्सर क्या करते हैं, 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती वो करते हैं, वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कभी मत बोलो ऑल ऑफ यू वर्ड, कभी यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप उनसे छोटे हैं। दूसरी जो बड़ी बात है, कुछ लोग अलग अलग सबको करते हैं, गुड मॉर्निंग 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 मैम मॉर्निंग, तो वो अच्छा इंप्रेशन कर रहा है। तो आपका फर्ज क्या है, आप उन्हें विश जरूर करो, बट उन्हें प्रॉपर सेंस में विश करो। मैं कहता हूं डेफिनेटली इंप्रेशन विल कम। तो मैडम आप दोनों जने मुझे विश करो, कम ऑन, पहले मैडम आप करिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, आप भी करो। गुड आफ्टरनून मैडम, प्लीज टेक योर सीट प्लीज। वेरी गुड। अब मैडम आप बैठ गए ना, अब मैं आप लोगों को बैठना सिखाता हूं, ध्यान से देखना मुझे। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी इस चेयर पे आपको बैठना हो, आप हमेशा इस चेयर को पहले यहां से उठाओगे, हमेशा आदत डालो। हमेशा इस चेयर को यहां से पकड़ोगे, हमेशा इस चेयर को हल्का सा टिल्ट करोगे, हल्का सा। बहुत भारी है तो ऐसा नहीं कि सर आना जरा, सर ने कहा था जरा पीछे देख ले, ऐसे मत करना। बस आपका काम है हल्का सा टिल्ट करना। तो आपने हल्का सा ऐसे हाथ कर दिया, बहुत भारी है, बस कोई बात नहीं, सोफा हो कल को तुम लगे उठाने के लिए, तो आपने सिर्फ ऐसा किया, राइट। अब आप बैठने लगे, ऐसे करना, अब छोड़ देना, क्योंकि आपने सिर्फ इसको स्ट्रेटन करने के लिए, ऐसे करने के लिए, स्ट्रेटन करने के लिए। अब आप बैठ रहे हो, तो बैठते समय ऐसे आओगे और अपना जो पेल्विक पोर्शन है इसको जितना उसके पीछे ले जाओ। क्यों? क्योंकि अब जब आप बैठ गए एक बार, तो आप ऐसे बैठोगे, बैठ गए आप। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप ऐसे बैठ तो जाओगे, मगर थोड़ी देर बाद 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो कपड़े तो बहुत ही बुरे लगोगे। तो आपका फर्ज है आप जितना हो सके पीछे बैठे। अब आप जितना मर्जी पीछे चले जाओ, आप सीधे रहोगे, आप गिरोगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो इफ यू लर्न दिस स्टेप, you can do a miracle. So one thing, notice it nicely, that whenever you are coming over here, you should always keep your hand like this, keep it like this, and then come like this, pick up like this, और बैठो। मैडम करके दिखाओ, तुम भी करके दिखाओ, come on, do fast। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आइए, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम उस समय हाथ छोड़ देना और फ्रंट में रख लेना अपने हाथ, राइट। हाँ, हाथ अगर आप बीच में रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और हैंड्स का पोस्चर यही रहेगा। एग्री स्टूडेंट्स? यस। अब जब आप बैठते हो तो उस दौरान ना कुछ वर्ड्स होने चाहिए। जैसे मान लो आप बैठने लगे, तो आप कोई थैंक यू सर, थैंक यू मैडम कुछ बोला करो। जिसने भी बोला हो, अगर सर ने बोला तो सर बोलेगा, अगर मैडम ने बोला तो मैडम बोलेगी कि थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। उसके बाद आप बैठा करो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इन बॉडी लैंग्वेज विच प्लेज अ वाइटल रोल,
लुक अप हियर। एक आपको एक चीज डिस्कस करते हैं आपसे। एक केस स्टडी है, इधर ले लो ये कैमरा। एक केस स्टडी है जिसके अंदर एक गर्ल है, वो कोई इंटरव्यू देने गई है। थोड़ा और नीचे, हाँ ये गर्ल है, दिख रही होगी आप लोगों को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके मैडम प्लीज। ये गर्ल है, इंटरव्यू देने गई है, राइट? वॉइस नहीं कर सकते स्टूडेंट अपने। द थिंग इज दिस गर्ल हैज गॉन फॉर एन इंटरव्यू एंड शी नोज वेरी वेल इंग्लिश, शी हैज डन हर इंटरव्यू वेल, बट एक कमी जरूर थी, वो थी उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो हम नोटिस करते हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा, डजंट मैटर, ही और शी विल डेफिनेटली सी, बट द थिंग इज उसके इंटरव्यू के दौरान उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो चेयर पे आ गई है। जब वो चेयर पे आई तो इंटरव्यूअर ने उससे क्वेश्चन पूछने शुरू किया एंड व्हाइल आंसरिंग शी हैज शोन हर बॉडी लैंग्वेज एज इफ दैट इट इज नॉट राइट। सी, शी इज शेकिंग हर लेग which is quite bad impression. While answering again, she is keeping her finger like this, which is again a bad impression during an interview. So such things, if you avoid, you can place a better impression of your personality. Even during an interview, her posture was not accurate because she was not sitting in a definite manner, and now she is playing with her earrings, which is again not good way. So you should not at all play with your earrings. This I want to show you only with one reason, that what this girl has done during an interview, and her English was good, no doubt, but her body language was not as if that she gets selected. And 55% of our body language plays a vital role during interviews. 38% is tone, T-O-N-E, and 7% is our words. So words doesn't matter, but the way we present the thing, that matter a lot. So if you present in a good manner, you can do a miracle. One more thing, during an interview, we have learned so many things. These are the body language signals, that there are gestures, there are postures. So few body language signals I'll show you from here, don't worry. Which plays a vital role in our personality or in our interview. Many are related to interview, but few are related to overall life also. So that body language plays what? Here are 6. So in this seminar, we'll see only one. Later on, we'll see in our classes only. And I'll put a word for you. These are the body language signals for nervousness. So कभी भी आप ऐसे करके नहीं बैठेंगे, फाइल को ऐसे करके नहीं रखेंगे, हमेशा फाइल को ऐसे करके रखेंगे। स्लम पोस्चर बोलते हैं इसको, जिसमें पांव खोल के बैठना, इट इज बैड। बिल्कुल चेयर की एज पे बैठना, इट इज अगेन रॉन्ग। टैपिंग फुट इज बैड हैबिट। रॉकिंग लेग्स, टैपिंग फुट्स आर क्वाइट बैड। कई लोग ड्रम करते रहते हैं फिंगर्स से टेबल वगैरह पे, तो ये भी बैड है। कई लोग फिडलिंग करते हैं, ज्वेलरी एंड ऑल दिस थिंग्स। कई लोग मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं, विच इज बैड। यू शुड नॉट कीप योर हैंड ऑन माउथ। कई लोग चेयर को हिलाते रहते हैं, रेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग स्क्रैच बहुत करते हैं, आई स्क्रैच करना, नोज स्क्रैच कर लिया, कुछ कर लिया। एग्रेसिव, आक्रामक, ये भी वे नहीं होना चाहिए जब हम किसी से बात कर रहे हैं, कि हम ऐसे करके हैंड्स फोल्ड किसी से बात कर रहे हैं, जिस क्वाइट डिफेंसिव। किसी की तरफ पॉइंट करना, किसी को फिस्ट देना, मुक्का दिखाना किसी को, बैड बैड बैड। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड। रूडनेस, कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे विच विल शो दैट वी आर अ रूड पर्सनालिटी। देखो ये पर्सन को, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल, जो आया हुआ है ये गुस्से में आ रहा है, ये भी बैड है। स्मर्पिंग, दूसरे पे हंसना। विस्परिंग, बैड। स्टैंडिंग टू क्लोज, किसी के पास ज्यादा खड़े क्लोज नहीं होना, उसे गैप दो, रिस्पेक्ट दो। फाइल पहले से, किसी का जोर से दबा देना, ये भी बैड मैनर्स में आता है। हैंड्स आप ध्यान रखो। कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, यॉर्निंग, उबासी लेना किसी के सामने बिना हाथ रखे, एक्सक्यूज मी प्लीज बोला करो। बार बार समय देखना, सब कुछ बैड है। कुछ नेगेटिव लीकेजेस है जो हमारी पर्सनालिटी को फिर से डाउनफॉल करते हैं। कुछ ऐसे सिग्नल्स भी आते हैं, वो है ज्यादा ब्लिंक करना। अगर आप में से कोई लोग ब्लिंक आई ज्यादा करते हो तो बैड है ये। प्लेइंग विद ईयर रिंग्स, प्लेइंग विद वॉचेस, चेन्स आर बैड, यू शुड नॉट टच। स्मोकिंग इज टोटली बैड। ऐसे 6 है स्टूडेंट्स, और हम लोग अपने सेमिनार के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि एक ही देखें, और फर्दर विल सी इन आवर लेटर क्लासेस, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। स्टूडेंट लुक बैक अगेन, वी आर हियर अगेन इन आवर सिटिंग पोस्चर। हमें बैठना आ गया है, राइट? अब सबसे पहले जरूरत है कि हमें बैठना तो आ गया है, मगर क्या हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठना आ गया है? प्लीज प्लेस दिस फाइल ओवर हियर। हाँ जी, ये फाइल दे दो मुझे। देखो मैडम, प्लीज गेट अप। मैडम आप थक रहे होंगे, कोई और बैठो भाई, आप आइए बस। आइए, शाबाश। आप भी बच्चे, हाँ कोई और आइए। किसको बुलाओ? नहीं नहीं, इनको बुलाते ना, आप आओ।
हाँ आओ शाबाश शवन, आप ही तो सीख जाएगा। नहीं आ जाओ मैडम, आप आओ। हाँ यस यू शुड कम। आइए आओ मैडम, दो दिन आइए। आते पीछे घर की लेडीज को बुलाया भाई मैंने। देखो प्लीज टेक योर सीट। हाँ अब ये ना मैडम ये डॉक्यूमेंट देखो, ओके इनके हाथ में देता हूं। मैडम आप एक बार खड़े हो जाइए। अभी आपको आता नहीं है मैडम, है ना, ये हम एज्यूम कर रहे हैं और किसी को भी नहीं आता यहाँ पर, तो ऑब्वियसली अगर आप गलत करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, राइट। मैडम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे तक आना है, वहां खड़े हो जाओ डॉक्यूमेंट्स लेकर। बताइए आप कैसे लेंगे, ले लीजिए अपने हाथ में। वेरी गुड मैडम, और कोई भी आप लोगे, और कोई भी? वेरी गुड, मुझे दो। देखो स्टूडेंट्स, जब आप डॉक्यूमेंट्स लेते हो यू हैव टू वेज। योर वन वे इज दिस, इट इज बोथ फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। दिस इज द प्रोफेसर स्टाइल, बट दिस इज ओनली फॉर लेडीज। तो जो मैडम ने लिया वो लिया लेडीज वाला सिस्टम, मगर आपको बता दूं देयर आर टू वेज। लेडीज कैन कैरी लाइक दिस ऑल्सो, लेडीज कैन कैरी लाइक दिस ऑल्सो। मैडम आप इसको वापस ले लीजिए और अपनी सीट पे बैठ जाइए। हाँ जी, इंटरव्यू आपको कह रहा है प्लीज बैठिए, आप बैठ जाइए मैडम। हाँ बैठ गए मैडम। अब मुझे आप ये फाइल दिखाएंगे, मैं आपसे बोलूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज शो करो। ओके मैडम, प्लीज शो मी योर डॉक्यूमेंट्स। ओके बस अब मैं आपको दिखाता हूं कि डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो गोल्डन रूल है वो ये है, प्लीज खड़े हो, अपनी फाइल पकड़ो, पकड़ो। पाठक ने मेरे कहने पे फाइल तो पकड़ ली, मगर पाठक ने एक बात भूल गया कि मैं पाठक को हाउ टू डू कर रहा हूं। पाठक को प्रॉब्लम आई, इसलिए हमने एक और रूल सीख लिया कि फाइल हमेशा किस साइड में पकड़नी है, लेफ्ट में। राइट हमेशा फ्री होना चाहिए। अब पकड़ो। हाँ अब पाठक क्या करना है, मैं जब डॉक्यूमेंट्स मांगू तो आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखाना, प्लीज शो मी डॉक्यूमेंट्स। वेरी गुड। अब मैंने दो लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे, मैं आपको जस्टिफाइड करूंगा कि जब कभी आप डॉक्यूमेंट दिखाओ तो हमेशा ओपन करके दें। एग्जाम्पल, मैडम प्लीज आस्क मी फॉर डॉक्यूमेंट्स। श्योर मैडम, प्लीज मैडम। राइट, कभी भी आप ऐसे नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा मत कर देना, खत्म हो जाएगा सारा इंटरव्यू। ठीक है, आपका फर्ज क्या है, जब आप ऐसे बैठे हो, इंटरव्यू आस्किंग यू प्लीज शो मी डॉक्यूमेंट, आपका फर्ज आप ऐसे खोलिए फाइल को, मैडम प्लीज ऐसे। और मैडम अगर दूर है तो आप खड़े हो और आगे जाओ आराम से, मैडम प्लीज, फिर उनके हाथ में। Is it okay, student? Yes, sir. Coming to the most important thing. Next, that is while sitting, you have to answer so many things. और कुछ बातें आपको नहीं भी आती, नहीं भी सुनती। मान लीजिए आपको कुछ ना सुने, कोई बात ना सुनाई दे, तो आप क्या करोगे? मैडम पार्डन वर्ड यूज करोगे? मैं उसको और अच्छा जस्टिफाइड कर देता हूं। यू शुड से मे आई बैग योर पार्डन प्लीज। क्या वर्ड यूज करोगे? मे आई बैग योर पार्डन प्लीज। जब मैं आपको जवाब दूं उस बात का, उस दौरान आप आंसर दोगे। मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता तो मैं हेल्प करूं इंटरव्यू रूम में। मान लो मैंने हेल्प कर दी तो आपका फर्ज है मुझे थैंक्स देने का, आप मुझे थैंक्स देंगे। यू शुड से सर थैंक यू फॉर अपडेटिंग माई नॉलेज। क्या बोलोगे? अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या ये अच्छा लगता है क्या। मैडम आप मुझसे पूछना कि सर व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ गुड टीचर, और मैं कहूंगा मैडम सॉरी मुझे नहीं पता, पहले मेरे को सुनाई नहीं देगा, तो देखना मैं क्या बोलता हूं, फिर आप बोलना कि टीचर इज नोबल प्रोफेशन, इतना बोल देना, फिर मैं आपको ना थैंक्स दूंगा, तो थैंक्स सुनना आप ध्यान से। तो आप मुझसे पूछो मैडम कि एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज होती है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी है? मैडम पार्डन प्लीज ना, मैं पार्डन प्लीज का मतलब क्या हो गया कि मुझे सुनाई नहीं दी है, तो मैं इसको दो वेज में बोल सकता हूं। मैं इसको बोल सकता हूं मैडम पार्डन प्लीज, या फिर मैं बोलूंगा मैडम मे आई बैग योर पार्डन प्लीज। क्या बोलूंगा? ये ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, मगर आपका क्वेश्चन का ध्यान रखना, आप बाकी तो सीख रहे हो बट आप मेरे क्वेश्चन को नहीं देख रहे हो। मैडम मे आई बैग योर पार्डन प्लीज, ऐसे कभी भी इंटरव्यू में ऐसे होता है ना, पार्डन प्लीज यू आर फिनिश्ड। हाँ झुके कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैडम पार्डन प्लीज। ऐसे आप ऐसे नहीं कह सकते पार्डन प्लीज, इट इज वेरी रॉन्ग, यू शुड नॉट। आपको क्या करना है, आगे क्वेश्चनिंग करनी है, राइट। अब मैडम मेरे को उसका आंसर नहीं आता तो मैं बोलूंगा, फिर आप देना इट्स ए नोबल प्रोफेशन। मैडम सॉरी आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोलना है? सॉरी आई डोंट नो। अब बोलिए मैम, इट इज नोबल नोबल प्रोफेशन। ओके
सो मैं अब मेरे को ना आपको थैंक्स देना है। आपने बोला इट इज नॉर्मल, आपने मेरे आंसर को दे दिया क्योंकि आप इंटरव्यूअर हो, वो आना तो मुझे चाहिए मगर मुझे नहीं आ रहा, पर आपने दे दिया, तो उस समय भी आपका फर्ज है कि आप उन्हें जवाब दो, राइट। मैडम शुरू करें फिर से, प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मुझे सुनाई नहीं देगा। What is the definition of a good teacher? सॉरी मैडम, पार्डन प्लीज मैडम। हाँ, What is the definition of good teacher? अब मान लीजिए मुझे सुन गया मगर मैं श्योर नहीं हूं कि यही है, तो क्या करोगे? तो आप एश्योर कर सकते हो। मैडम, डू यू वांट टू नो द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर? Yeah. ओके, थैंक यू मैम। मैडम, आई डोंट नो आंसर दिस क्वेश्चन, सॉरी। अब आप बोलिए, इट इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम। It's a normal profession. थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। बोलो, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। जब आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसी बात बोलोगे वो बहुत बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपना टाइम दिया आपको। उसको क्या मतलब है यार, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, वो नहीं आता, भेजेगा आपको, क्या वो बता रहेगा। मगर जब आप उसको बोलोगे थैंक यू सर, आपने मेरे नॉलेज को अपडेट किया। इंटरव्यू के दौरान किसको मतलब है पूछने का, कौन बताएगा आपको, क्या वो बताएगा। मगर कुछ इंटरव्यू बता देते हैं जवाब कि भाई इसका जवाब ये होता है, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, इसका जवाब ये होता है। नंबर तो नहीं देगा आपको मगर आपको जवाब तो दे सकता है। उस समय आपका फर्ज है थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माई नॉलेज, आप ऐसा बोलेंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स हमारा पार्ट आता है कि हमने युद्ध कर लिया और कौरवों को हरा दिया और हमारा जो अभिमन्यु है वो बच गया, अब उसे चक्रव्यूह से बाहर भी आ गया, राइट। अंदर आना आ गया है, बहना आ गया है, अब हमें क्या सीखना है, बाहर जाना, राइट। हमें वापस कैसे जाना है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। Whenever you are coming for interview, आप जाने लग रहे हो तो आपका वे क्या हो? आपका वे सिर्फ एक है स्टूडेंट्स। जब आप जाने लगो सबसे पहले अपने माहौल को देखो, अपनी जगह को देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर। आप यहाँ हो, हल्के से अपने पाँव को पीछे हल्का सा, उससे क्या आपको खड़े होने में बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि जब आप पाँव को आगे रखेंगे तो आप कभी खड़े नहीं हो सकते। आप नोटिस करो, आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते कभी से। तो आपको हमेशा क्या करना है, पाँव को थोड़ा सा पीछे हल्का सा, आवाज नहीं करनी, हल्का सा नहीं। उसके बाद में आपको इन पर हाथ रखना है, नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो भी सही, ठीक है। आपको हैंड्स लेना है, आराम से इस पे खड़े होना है, आराम से साइड पे आना है, फिर से इस चेयर को यहीं से आना है, फिर से इस चेयर को यहीं से पकड़ो, सेट करो उसके लिए। क्योंकि बहुत से लोग इंटरव्यू में ऐसे करके छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब वो देखो चेयर को देखो, खड़े हुए आप और आपने क्या किया, आप यूं जा रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, आप छोड़, ठीक है चले। अब वो चेयर बता रही है कि आपने क्या सैक्रामेंट्स आज तक अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से लिए हैं। वो सैक्रामेंट्स ही आपका सिलेक्शन करवाते हैं, यानी संस्कार। तो वो सैक्रामेंट्स कैसे पैदा कर रहे हैं, वो करने हैं कि जिस चेयर पे हम आ गए हैं इसको हमें रेस्पेक्ट भी तो देना पड़ेगा। अब हम जब खड़े हुए तो हम यहां पर आए और हमने फिर से इस चेयर को हाथ लगाया, इस चेयर को फिर से हाथ लगाओ और फिर से थोड़ा सा सेट करो। अब मान लीजिए आप दोनों मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने अपनी चेयर को सेट किया और अब मुझे बोल रहे हैं थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं जाऊंगा, राइट। तो मुझे क्या बोल रहे हैं, थैंक यू मैम, राइट। हमने सब कुछ सीख लिया स्टूडेंट्स, राइट। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, मैंने आपको अभी तक एक चीज नहीं सिखाई, बता सकते हैं कौन सी है वो? बॉडी लैंग्वेज। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ टू एंटर द रूम, एंट्री कैसे करनी है। तो एंट्री के लिए मैं जस्टिफाइड ये रखूंगा कि हमारे किसी बॉयज मेंबर को इनवाइट किया, तो मैं कहूंगा शुभम को बुलाए हम, हैं? आ जाए शुभम, आ जाए, आप आइए, लेडीज आप लोग फ्री हो। और इस तरह मैं पाठक को बिठाऊंगा, पाठक तुम इधर आइए चेयर लेकर दिस साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, कम फास्ट पाठक, हाँ कम दिस साइड, वेरी गुड, प्लीज टेक योर सीट। वेरी गुड, आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो? Yes. हाँ बैठ जाओ। आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, बाहर से आए हो, आओ बाहर से, हाँ बाहर से आना, बाहर से प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज लुक अप हियर, हाँ वेरी गुड। नहीं कई जॉब में फाइल लेते हैं मैडम, प्लीज कम इन मैडम, हर डॉक्यूमेंट नहीं लेते प्लीज। अब शुभम का थोड़ा सा नकारात्मक वे नहीं मिला आपको, है ना? अच्छा था मगर एक गलती करी शुभम ने, थोड़ा स्पीड था, राइट। आप देखो स्टूडेंट, जब कभी आप एंटर करो थोड़ा सा क्या नर्वस है माहौल देख के, तो देखो शुभम आओ मेरे पास, करवाता हूं तुमसे, मैं दोबारा करवाता हूं। ये देखो, प्लीज लुक अप हियर। Whenever you are entering students, you should keep your file like this on left side, right? Please don't talk ladies. Look up here. आपने फाइल रखी, आपका सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, नॉकिंग। आपको नॉक करना है डोर को। नॉक का भी एक प्रॉपर वे है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कहीं कुंडी खड़का दो आप,
Never ever. 2 times. Very good. Madam knows. That's nice. Look up here. अगर ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा मेन गेट है या ये वाला गेट है, तो हमें इस डोर पे नॉक करना है. तो नॉक शुड बी एज पर योर नोज लेवल. आपके नोज के लेवल पे आप नॉक करोगे. आपका नॉकिंग का भी हमेशा ये रहना चाहिए. कितनी बार होना चाहिए? 2 टाइम्स. विमला मैडम ऑलरेडी टोल्ड अस दैट सर इट शुड बी 2 टाइम्स. अगर 3 टाइम्स हो गया तो ये इलिटरेट व्यक्ति की निशानी है. ऐसा आप नहीं करेंगे. आप हमेशा क्या करोगे? 2 टाइम्स. कट कर लिया आपने. अब आप परमिशन लोगे, हल्का सा डोर खोलोगे. डोर खोलते हुए कभी भी इंटरव्यूअर को बैक साइड नहीं दिखाओगे. ऐसे करके नहीं करो. जैसे आप मंदिर में जाते हो ना, भगवान की ऐसे जय भगवान जय भगवान जय भगवान, ठीक है, ऐसे जाते हो ना. कैसे जाते हो? हाँ भगवान जी आ गया मैं, ठीक है आ गया मैं बोलता हूँ. ऐसे नहीं आओगे आप, राइट. तो इंटरव्यू में आप ध्यान रखो, whenever you are entering in interview chamber, you should keep your hand like this, open up nicely. Let us see here. Please may I come in, sir? Please come. देखो ये देखो, ये this is a proper way. 90 degree angle. You should not make 180 degree. ऐसा एंगल नहीं बनाना, क्योंकि here you are showing the backbone, which is a bad impression of interview. तो आपको हमेशा 90 डिग्री के एंगल से अपना दरवाजे को बंद करना है और फिर आपको अपने स्टेप्स को चलाना है. जो अपने स्टेप्स को चलाएंगे तो आप यहां तक पहुंचेंगे, राइट. और यहां पहुंच के आप रुक जाओ. आप आए, आप यहां तक आए, अब आप उसको विश करो. मॉर्निंग सर, राइट. उसके चेहरे पे स्माइल लाओ अपनी स्माइल से. गुड मॉर्निंग सर. वो आपको कहेंगे प्लीज टेक योर सीट, राइट. उसके बाद ही बैठो, ऐसे नहीं गुड मॉर्निंग सर, राइट. अब आपको क्या करना है? यहां पर आए, गुड मॉर्निंग सर. वो कहते हैं प्लीज टेक योर सीट. अब आराम से इस पे रखो या डायरेक्ट भी बैठ सकते हो. ओके, इधर हो तो ऑलरेडी आप फ्री हो, वरना इस हाथ में लेकर आप बैठे, राइट. एनी पर्सन हु वांट टू डू दिस? कोई पर्सन? शुभम तो कर लिया ना. कोई और पर्सन? कोई और पर्सन? आप करोगे? वेरी गुड, शाबाश. स्लो करना बस. शुभम का सही था, स्पीड तेज थी, बस इतनी गलती. तो इफ यू डू इट नाइसली यू कैन डू अ मिरेकल. करो. हाँ हाँ, क्यों? Why you fear? Welcome. Very good. Good morning, sir. Very good. Very good. Very good. इसमें बताओ एक बात. लाओ तो. नहीं सही है, बैठने से इधर दो. जैसे आप इधर आए ना, इधर खड़े हो, आपके हाथ में ये फाइल है अभी, क्योंकि ऐसे पकड़ना है ना, सब कुछ प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं, आपको बैठना है ना, और मैंने आपको ये सिखाया है, तो आप इस हाथ में अपनी फाइल लो. आप आराम से लो, इस चेयर को पीछे लो. बेस्ट होता है, बेस्ट, राइट. विल यू डू इट स्टूडेंट्स? Properly, proper manner, right. Come back, all of you. Please come on your seats. Students, this part of interview, which really I want to teach you, is impressive. And here body language plays a vital role. Look up here, students. We have learned body language in interview. We have learned intro in interview. We have learned so many questions. But the thing which is only your confidence. If you develop your confidence during your interviews, you can do a miracle. क्योंकि जो भी मैं आंसर्स दिखाता हूं, जो भी मैं आंसर्स करवाता हूं, कोई जरूरी नहीं इंटरव्यू वो ही आंसर्स आपसे पूछे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मगर अगर आपको वे आ गया प्रेजेंट करने का, तो वो आपको लाइफ का कोई भी क्वेश्चन दे दे, he can ask you anything, you can do a miracle in your life. Will it be possible for all of you? Yes, sir. चलो, my blessings are with you. You all will get selected in your life. Okay, students? Thank you. Thank you, sir.